Good morning, students. How you are? Hope you all are fine. And let's hope we will meet soon. Today I'm starting my first chapter of the microeconomics, which is related to economics and economy. Economics, I think it's not a subject. It is merely our routine life. We have to concentrate on the word economics from where it comes. Economics is the combination of two words, oikos and Neumann, which is related to oikos means to say household and Neumann means to say manage. That means to say how we can manage our household. Economics is a subject which is related to economic problems. Economic problems means the most biggest problem is wants are greater than means. In our routine life, we are having so many wants, but resources which are totally limited. And we are revolving in a cycle which is related to wants. To fulfill these wants, we have to put एफर्ट्स मीन्स उसे हम लोगों को कोई ना कोई काम करना पड़ता है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकल के हम अपनी सर्विसेज दूसरों को देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास वेल्थ पैसा आएगा और यही वेल्थ हमारे काम आएगी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स. But it's obvious, as one need is satisfied, the other needs will occur. And that's why I'm saying that we are revolving in a cycle. It is known as economic cycle. The most important thing in the economics is why economics occurs. Economics occurs due to economic problems. It is the subject which come in existence due to economic problems only. Economic problems, the very first economic problem is unlimited wants. In our routine lives, our wants are unlimited. One need is fulfilled and other need will occur in a cycle. So that's why we are having unlimited wants. The second is, but to fulfill these wants, our sources are limited. So second problem is limited resources. And third economic problem is how we can utilize these resources, because these limited resources are having alternative uses. That means to say एक ही चीज़ को हम कई जगह पे यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क कैन बी यूज फॉर द टी, for making coffee, for making curd, so many things we can make from milk. But we have to think to which thing we have to give the more priority, because from alternative needs we will check urgency of needs. Urgency of need means say which need is more urgent. For example, if I want to make tea, or we can give the milk to the children, but the milk to the children is more important than our tea. So इस तरीके से, क्योंकि वो तो बच्चा है, अब बच्चे को दूध चाहिए, अगर बच्चे को हम दूध नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आएगी. हमारी चाय को तो हम लोग पोस्टपोन भी कर सकते हैं. So it is related to urgency of the needs. The fifth and the last problem is problem of choice, because from unlimited wants with limited resources, by checking the alternative uses, we will check the urgency, that which need is more urgent. According to that, we will make the choice. Economics is the subject which is related to choices. As we know, there is a need of choice because of
limited resources but unlimited wants. If there are unlimited resources, then there will be no need of the choice. But we are having the need of choice because the problems are unlimited and the resources are limited. Resources are scarce. ये वर्ड आपको बार बार नजर आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में. scarce resources मतलब resources are limited. We are having 3 groups in an economy. हमारे एजेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रुप्स. मतलब कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं. द वेरी फर्स्ट इज कंज्यूमर. हु इज़ कंज्यूमर? ये बेटा बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में आएंगे. हु इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर हु वांट्स टू fulfill his needs, who wants to satisfy his needs by using his limited resources. अब देखो, resources are limited but wants are unlimited, so he will make the choice to get maximum satisfaction by paying minimum price. अब आप लोग देखो, आप लोग जब भी मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे कोई भी चीज़ परचेज़ करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पे मोल भाव करते हो. उस मोल भाव का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप लोगों की कोशिश होती है कि आप कम से कम कीमत दो, बट जो दुकानदार है, जो बायर, जो सेलर है, उसकी हमेशा कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आप लोगों से ले. इसलिए दोनों में आपस में कंपटीशन होता है. द सेकंड पर्सन इन दिस ग्रुप इज प्रोड्यूसर. हु इज प्रोड्यूसर? हु प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर getting profit. Producer is a person who produce the goods, who creates the utility among the goods. Utility means उसे उस चीज़ को यूज़ करने के लायक बनाना. ठीक है. Producer is a person who produces goods and who creates the utility among goods. तभी तो वो चीज़ बेटे आप तक पहुंचती है जब वो चीज़ को प्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दिस इज़ द बेसिक चैप्टर. तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जो आप लोगों को आगे हर एक चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी. जो कि द प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द गुड्स फॉर द सेल्फ प्रॉफिट. अब इसमें भी देखो, जब प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए उसकी कोशिश ये होती है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट बाय पेइंग मिनिमम कॉस्ट. जब भी बेटा कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है उसकी कोशिश ये होती है कि मेरा खर्चा कम से कम हो और मेरे लिए प्रॉफिट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो. और फॉर दिस प्रोडक्शन ही विल यूज़ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट आर वेरी फर्स्ट फैक्टर लैंड. सेकंड इज उस लैंड को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए ही नीड्स लेबर. एंड द थर्ड थिंग इज कैपिटल. ठीक है. लैंड होगी आपके पास, उसके ऊपर लेबर लगा दिया आपने, जिससे क्या होगा? उसके ऊपर फैक्ट्री वगैरह बन गई. एंड नाउ द थर्ड थिंग इज कैपिटल. मतलब कि यू नीड मशीनरीज, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा. एंड द फोर्थ एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is a person who collect all these factors of production. ठीक है. प्रोडक्शन करने के लिए एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज या ऑनर इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि अगर ये बंदा नहीं होएगा तो ये रिसोर्सेज इकट्ठे कैसे होंगे. ठीक है. सो ही इज़ द पर्सन हु कलेक्ट्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स. एंड द थर्ड most important group, that is
आवर गवर्नमेंट ये देखो, इसका मेन मोटिव सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इसका मेन मोटिव प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ प्रॉफिट्स, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। बट इसका मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। कंज्यूमर्स को ठीक रेट पे चीज़ मिले, प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कहीं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए गवर्नमेंट जो है दैट इज़ फॉर द सोशल वेलफेयर, बल्कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। I said that economics is a subject which is related to economic problems. But उसके लिए economic problems क्यों अगर होती हैं बेटे? Because we people are doing economic activities. Coming back to the topic again. Earlier we have started our topic from economics word and economic problems. But now we are talking about economic activities. I know economics is a subject, but in economics, in economy means where people live and do their economic activities. And now, what are economic activities? In our routine life, we always do so many works, but all the works are not part of economics. Because in economy, we are doing economic activities and non-economic activities. Now, what are these economic activities and non-economic activities? Economic activities are those activities which are related to give and take works. Like when we go to the market, we purchase the goods. For purchasing these goods, we often pay the price of the commodities. आपके पास चीज़ आ गई बेटा, और जिससे आपने वो चीज़ ली है बदले में आपने उसको प्राइस दी है। तो इसका मतलब ये दोनों तरफ से होगी, सेलर ने आपको चीज़ दी, बायर ने चीज़ परचेज की है। दिस इज नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय पेइंग द प्राइसेस। बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, these are those activities which are either give or take, which are related to either give or take. For example, आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पे आप प्रसाद चढ़ाते हो, किसी को दान दे दिया आपने, या मतलब कोई भी और आपने कोई ऐसी सोशल एक्टिविटी की है जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, मेयरली सेटिस्फैक्शन ओनली। इसमें बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, या आपने किसी से कुछ लिया, जैसे आपके बर्थडे पे किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, आप शादी पे शगुन वगैरह दे के आते हो। दीज ऑल आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू वन वे एक्टिविटीज ओनली। अब नाउ हम इकोनॉमिक्स, जब भी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ टू वे है, जिसमें हमें कुछ दे के बदले में वापस कुछ मिले, उसी को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि बेटा हमने जब भी आपने +2 में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हम नेशनल इनकम काउंट करनी होती है। नेशनल इनकम जब भी काउंट करनी होती है तो उसमें ये होता है कि या आप अकाउंट्स में पढ़ते हो क्रेडिट एंड डेबिट साइड, ये दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स में आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। सेम इज़ हियर इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो, हम लोगों को इकोनॉमिक्स में बैलेंस करना होता है, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही बीच में काउंट करेंगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको क्यों करनी पड़ती हैं? बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्कार्स। अगर यही रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, स्कार्सिटी,
अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो आपको इनको परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमको ये चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दीज रिसोर्सेज आर स्कार्स। अब छोटी सी एग्जांपल है, ऑक्सीजन दैट इज़ अनफ। हमें सांस लेने की हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन इज़ इनफ, बट फिर भी इसको भी हम परचेज़ करते हैं। कब परचेज़ करते हैं? अगर हमें डीप सी में जाना है, अगर हमें हिल एरियाज़ में जाना है, या कोई बंदा बीमार है, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, उसको ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हम लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर परचेज़ करने पड़ते हैं। ऑक्सीजन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गॉड गिफ्टेड है, मिलती है, बट फिर भी उसकी कीमत हमें देनी पड़ेगी जब वो स्कार्स होगी। तो इसलिए इकोनॉमिक्स तभी एग्जिस्टेंस में आई है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। अगर सोर्सेस स्कार्स हैं तो हमें इसकी इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं। अब नाउ वी आर कमिंग ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। व्हाट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी आर डूइंग इन आवर रूटीन लाइफ? दैट आर द वेरी फर्स्ट इज कंजम्पशन। अगर हम बात करें तो किसी भी प्रॉब्लम का आगाज़, शुरुआत कहाँ से होती है? खाने की प्रॉब्लम से, कंजम्पशन से। कंजम्पशन मीन्स टू से डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स, ठीक है, या यूटिलाइजेशन ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज कंजम्पशन। यूटिलाइजेशन ऑफ यूटिलिटी among goods is known as consumption. अब यूटिलिटी क्या होती है बेटे? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। वाई वी वांट टू कंज्यूम दैट कमोडिटी? फॉर एग्जांपल वाटर टू quench our थर्स्ट। हम लोग पानी क्यों पीते हैं बेटा? इसीलिए पीते हैं ना क्योंकि उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारी प्यास ख़त्म होती है, ठीक है। खाना हम लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि उससे हमारी भूख ख़त्म होती है। सो इसलिए इसी की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है। कंजम्पशन है तभी हम लोग चीज़ की डिमांड करते हैं। उस चीज़ की डिमांड को फुलफिल करने के लिए द सेकंड एक्टिविटी इज प्रोडक्शन। इस वांट को फुलफिल करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं बेटे? प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी अमंग गुड्स। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी अमंग गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन। अब ये हम लोग जब यूटिलिटी क्रिएट करते हैं तो फॉर दिस पर्पज ही नीड्स 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने पीछे आपको बताए हैं। द वेरी फर्स्ट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड फोर्थ इज जो बंदा मेन है, एंटरप्रेन्योर। These are the 4 factors of production. By using these factors of production, he will produce the goods for the consumption. And the third is exchange. अब देखो, इसने प्रोडक्शन कर दी, बट वो प्रोडक्शन आप तक तब पहुंचेगी जब आप उस चीज़ को परचेज करने के लिए मार्केट में जाओगे। द थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाय गिविंग गुड्स और बाय गिविंग मनी। आप लोग मार्केट में चीज़ परचेज करने के लिए जाते हो, आप क्या करते हो? पैसे दे के चीज़ खरीद लेते हो, ठीक है। दिस इज नोन एज द एक्सचेंज। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू डिटर्मिन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्रोड्यूसर विल डिटर्मिन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट विच ही यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। एंड फोर्थ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन है? Distribution means to say producer has used these all factors of productions that are land, labor, capital and entrepreneur. बेटा ये लोग कहाँ से आएंगे? ये लोग आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर में से। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कि हम लोगों का सेक्टर, कंज्यूमर्स का सेक्टर। पर जो भी कंज्यूमर्स हैं वो प्रोड्यूसर भी तो हैं। आप लोगों के पेरेंट्स भी किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व हैं। आपके पेरेंट्स किसी ना किसी, कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, कोई प्राइवेट जॉब पे है, कोई बिजनेस करते हैं। तो मतलब कि वी पीपल आर
हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो कंज्यूम भी करता है और प्रोडक्शन में अपने आप को प्रोड्यूसर सेक्टर में देता भी है, अपनी सर्विसेज वो वहाँ पे देता है। तो नेचुरली दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कहाँ से निकले अपने हाउस होल्ड सेक्टर से और कहाँ पे जाएंगे, प्रोडक्शन सेक्टर में। तो नेचुरली ये क्यों जाएंगे, आप लोग जब कोई काम करते हो तो क्यों काम करते हो, ताकि बदले में आपको पैसे मिले, ठीक है। तो नेचुरली प्रोड्यूसर हैज़ टू पे दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ जो लैंड है। यू पीपल आर वेरी वेल नोन टू दैट। अगर आप किसी के से घर कोई किराए पे लेते हो तो नेचुरली बदले में आप क्यों लेके लेते हो, रेंट। द सेकेंड इज लेबर, वर्कर जब भी कहीं पे काम करने के लिए जाते हैं देन दे विल बी एबल टू गेट वेजेस और सैलरीज, जो भी सर्विसेज उन्होंने दी है बदले में क्या मिलेंगे, वेजेस और सैलरीज। द थर्ड इज कैपिटल, कैपिटल कैन बी सेट मनी, मनी जब भी बेटा आपको पैसा काम करना है तो काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे आप लोन लेते हो, कहाँ से, बैंक से भी ले सकते हो, आप अपने रिलेटिव से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, बट उस पैसे के लिए यू हैव टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नेचुरली ये पैसा प्रोड्यूसर ने लिया तो प्रोड्यूसर विल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द कैपिटलिस्ट। द ओनर ऑफ द कैपिटल इज नोन एज कैपिटलिस्ट, द ओनर ऑफ द लेबर इज नोन एज लेबरर, the owner of the land is known as the landlord, and enterprise, the owner of the enterprise is known as the entrepreneur. अब देखो, he had pays the payment to the all factors of production. Now the rest of the surplus money will go to the entrepreneur in the form of profit. ठीक है, सो प्रॉफिट इज द रेजिडुअल इनकम, नॉट श्योर कि ये बचेगी या नहीं बचेगी। बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने के बाद अगर उसके पास सरप्लस पैसा हो तो दैट विल बी हिज प्रॉफिट, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर को हमेशा प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, बट ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय पेइंग मिनिमम कॉस्ट। सो दीज ऑल आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग बैक, रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स वर्ड यूज़ किया है, इकोनॉमिक्स सारी आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। द सेकंड थिंग इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी इज़ अ प्लेस, स्पेसिफिक एरिया वेयर पीपल लिव टू अर्न देयर लिवलीहुड, जहाँ पे लोग पैसा कमाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और वहाँ पे रह के वो लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों तरह की एक्टिविटीज़ हैं, बट आप लोगों को इकोनॉमिक्स में वी विल कंसीडर ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू गिव एंड टेक प्रॉब्लम्स। सो इट अकर्स, ऑल दीज प्रॉब्लम्स अकर्स ड्यू टू स्कार्सिटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसलिए करनी होती है क्योंकि वहाँ से हमें चीज़ जहाँ तो मिलेगी या हमने चीज़ देनी है तो वहाँ पे एक्सचेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स वाई रिसोर्सेज जो है हमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से उसकी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में इन्वॉल्व नहीं करते। एंड हमारे पास 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दैट आर रिलेटेड टू कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आप लोग, मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले ही दे रखे हैं ट्यूटोरियल ग्रुप में, आप लोगों ने उस ट्यूटोरियल ग्रुप वाले क्वेश्चंस जो है वो अपनी नोटबुक पे करनी है और इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।